like to invite Rajesh Kamath. As you can see, he's full of energy, brightness, cheer, and chirpiness. And I have great respect for him. We had love at first sight sometime back. Absolutely. They run a program called Chiranjeev Gurukul near Pune. They have a farm called Cherish Farm. Thousands of acres of sugarcane. That's the lazy way of making money. You just put the sugarcane, there's hardly any pest, and you don't even have to harvest the crops. You just tell the sugar company, they send the labor, put it on tractors and take it away, and you count your money. But in that, Rajesh and his friend Praful Chandavarkar have created a 4-acre place called Cherish Farm, where there are something like 400 different varieties of plants that are grown there. Something like 400 in 4 acres. Now that's incredible. So we will be meeting Praful Chandavarkar and Rajesh. Hopefully at that time Rajesh will be in class personally, but that's for the other course, which is sustainability. How do you create sustainable restaurant chains? So those of you who are in this course and not in that are welcome to meet both of them on that day. Okay, so Rajesh Kamath is a passionate learner, teacher, writer, and leadership consultant and coach who has been putting timeless Indian philosophy in work in modern organizations, large and small, educational institutions, and social organizations. An engineer MBA by qualification, his purpose is to take India's essential eternal wisdom, especially Kautilya Arthashastra, into all walks of life. He leads Chanakya Consulting Insights and Chiranjeev Gurukul Leadership Course. On that note, I'd like to welcome him. Namaste, everyone. And if we have Popatji, I'd also like to introduce him. Is he around? I don't see his screen. No, Professor. I think he dropped off. He might be joining in sometime. Yeah, one of his assistants might have just tested it. And Rajesh, you're welcome to, although you're very, very articulate in English, once Popatji comes, at least better you switch to Hindi. I'll also switch to broken Hindi. So that everyone's comfortable as well. Yes, and especially him. I think he would be lost in... वो हिंदी में ही बात करेंगे. ठीक है, अभी भी करना है तो कर सकते हैं. व्याकरण में कुछ गलती है तो these are all Hindi विद्वांस, माफ कीजिए. Yes, I will use a mix as and when it comes to me. Right. So since we have discussed Hivre Bazaar in depth, and the motivation for bringing Hivre Bazaar is, I said, if you are talking of rural markets, we can't talk of them unless we create some buying power of the people. If they are just wallowing in hand-to-mouth existence, keeping their stomach and soul together, where is the market? And Hivre Bazaar is a classic example, 825 rupees or 829 per year per capita, which is barely existence. I mean, what can you get for that? Of course, a family of 5, maybe 300-400 rupees a month. Unthinkable how you can even live there, but that's the reality. And then this man comes in and through intervention, 30,000 rupees per capita. So a family of 5 will have 1.5, which is respectable, lakhs, about 10-12,000 per month. So you have some discretionary income and such. So the question, Rajesh, that I tried to raise in the beginning is, how do you scale this initiative? Hivre Bazaar, we all say salam to Popat Raoji and to the folks in that village. But then why can't it go to the other 6 lakh villages in the country? So the challenges in scaling. And that's where I would like you to come in. And of course, you can unleash your tools of Arthashastra. And I will be a obedient student during the next 1 hour. Over to you. So, namaste everyone, और पोपट राव जी पवार, पद्मश्री पोपट राव जी पवार को भी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते कहता हूँ और स्वागत भी करता हूँ. I've seen him, logged him, लेकिन शायद अभी तक सर नहीं आए. पोपट राव जी, आप हैं क्या? It's possible that someone logged in for him. More likely he will. Yes, he is there. Sir, नमस्कार. नमस्ते पोपट राव जी. नमस्ते नमस्ते. मैं आपको एक बार फॉर्मली इंट्रोड्यूस करूंगा. हमारे इधर छात्र है 60 लोग, 65 लोग.
एंड उसमें 60 लोग क्लास में है और 15 लोग ऑनलाइन. सो पोपट जी पवार पद्मश्री है एंड वो सरपंच है हिवरे बाजार का, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में. उन्होंने नेतृत्व लिया और पूरा गांव को का चरित्र बदल दिया, मतलब उनका तकदीर बदल दिया. पहले बहुत भूखे प्यासे थे लोग और उसके बाद अभी काफी गांव के मुताबिक काफी अमीर है. Folks, I'm doing online translation. No problem. No problem. Don't worry, sir. Testing my skills to the hilt. उन्होंने पद्मश्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त किया. उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, ना केवल महाराष्ट्र में या इंडिया में, बट आई एम श्योर डेवलपिंग वर्ल्ड में. एंड अभी महाराष्ट्र राज्य का आदर्श गांव योजना का अध्यक्ष है, उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है. वे और उनके गांव हिवरे बाजार को अनगणित पुरस्कार मिला. तो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में जो कहा बहुत सूक्ष्म है और उनके असली इंट्रोडक्शन करेंगे तो 1 घंटा भी काफी नहीं होगा. सो हम बहुत आभारी है आप आए हैं हमारे क्लास में. और ये सब MBA लोग, ISB मोहाली से हम बात कर रहे हैं. ये लोग बहुत इंस्पायर होके आगे बढ़ेंगे. उनके जीवन में काफी प्रेरणा, अंतर प्रेरणा होगा इसके बाद. तो बहुत धन्यवाद आपको पोपट राव जी. अभी हम अगले 1 घंटा खाली हिंदी में करेंगे जहां तक संभव है. हमारे तमिलनाडु के कोई भाई होता है तो उनको हिंदी का दिक्कत हो सकता है. कोई है तमिलनाडु? तो प्रोफेसर वैसे भी हम मैनेज कर लेंगे बिटवीन मी एंड पोपट राव जी. वी विल मैनेज. सो उसकी कोई चिंता नहीं है. On a different note, I think it's good to be sticking to only Hindi because we have to be proud of our country. You know, if you go to Japan, they're not going to have English there. It's going to be in and out Japanese, Chinese. हमारे दुर्भाग्य है कि हम ये इंग्लिश भाषा को embrace किया. Anyway, over to both of you. Yes. So just give me a minute, folks, and I will present the case to you. I'm going to cover just 10 slides from it. और मैं चाहूंगा कि सिर्फ आपको थोड़ा सा बताए इसके बारे में, ताकि जब पोपट राव जी आपसे बात करेंगे आपको उसका और महत्व समझे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बैकग्राउंड दे दूंगा. सो फोक्स और सारे छात्र, यू आर द फ्यूचर ऑफ बिजनेस, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. एंड प्रोफेसर शेषाद्री को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये एक मौका जो है हमें ये केस प्रेजेंट करने का दे दिया. एंड दिस इज वेरी पावरफुल. सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं एग्जैक्टली 1 साल पहले हमने ये निर्णय लिया था कि हम हिवरे बाजार जाएंगे. 19th of March we were in Hivre Bazaar last year, me and my 20 colleagues. इसी चीज के लिए हम गए थे कि कैसे हम कौटिल्य अर्थशास्त्र को लेकर हिवरे बाजार, जिसके बारे में हमने इतना सारा सुना था, उस केस को अगर देखे तो किस तरीके से हम दोनों को लिंक कर सकते हैं. तो पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि 2001 से 2003 तक, 2006 तक मैं महिंद्रा ग्रुप में लीडरशिप डेवलपमेंट इसका हेड था. Now you can imagine leadership development in a transnational organization like Mahindra, how it would have been. लेकिन उसमें जो भी हम केसेस के बारे में बात करते थे, सारे कंपनियां फिरंगी थी. आई एम यूजिंग दैट टर्म नॉट इन अ नेगेटिव वे, but just to tell you, they were all foreign companies by and large. तो हम यही सोचते थे, अरे भारत में कोई केस नहीं है क्या जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं लीडरशिप के बारे में. और सेकेंडली, लीडरशिप क्या सिर्फ कंपनियों में होता है?
तो इस सोच से मैंने एक आई वुड से आई स्टार्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन 2013 जिसको कंपनी के रूप में चाणक्य कंसल्टिंग इनसाइट्स बोलते हैं. यू हर्ड इट इन माय इंट्रोडक्शन. लेकिन उसके साथ साथ आई आल्सो स्टार्टेड अ कम्युनिटी कॉल्ड लिविंग फिलॉसफी स्टडी ग्रुप. ये कम्युनिटी में 100 लोग हैं और सारे मेरे सहपाठी और मैं मिलकर हर हफ्ते हम लोग एक शाम को कौटिल्य अर्थशास्त्र के सूत्र पढ़ते हैं. लेकिन सिर्फ पढ़ने से तो काम नहीं बनेगा. तो पढ़ने के साथ साथ कहां पर इसका एप्लीकेशन हो रहा है ये देखना जरूरी है. तो मैंने बहुत पढ़ा था हिवरे बाजार के बारे में. लकीली we were able to get in touch with many different people over there, especially Habib ji, who also is one of the most amazing executives, if I can call it that, of Hivre Bazaar, who works under the leadership of Pawar साहब. तो पवार साहब ने हमको स्वागत किया और बोले आ जाओ, लेकिन इसका आप करोगे क्या? बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कम टू स्टडी हिवरे बाजार. लेकिन फिर उसका करते क्या है? तब हमने पोपट राव जी को ये प्रॉमिस किया था दैट सर हम इसके बारे में इसको स्टडी करने के बाद एक केस प्रिपेयर करेंगे. एंड दैट केस, my dear friends, is being presented to you today. Look at the coincidence that Professor Sheshadri called me exactly 1 year after our visit to Hivre Bazaar. So here, my dear friends, मैं आपके सामने सिर्फ केवल 9 से 10 स्लाइड के बारे में बात करूंगा. उसके बाद पोपट राव जी जब बात करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या है ये. What I want to tell you, my dear friends, is that the way we study cases in business school, I feel, is not sufficient. All right, please pardon my little bit of the phrase that I use when I say insufficient from an application perspective. So हमने क्या किया? To make a change, we used Hivre Bazaar as a case and we created what is called as mantra, tantra और यंत्र. ये तीनों शब्द संस्कृत में भी है लेकिन सारी भाषाओं में है. भारत के भाषाओं में क्या है हम देखेंगे. Let me start directly with the case, and I'm not going to describe this in detail because sir is himself here, Popat Rao ji Pawar. लेकिन थोड़ा सा बिफोर आफ्टर शेषाद्री साहब ने ऑलरेडी थोड़ा सा आपको कवर किया है. I'm just showing you the stark difference from a drought-stricken poor village in the 70s and 80s. Okay, scarcity of water, और उसके वजह से गांव के जो लोग थे उसे छोड़कर मुंबई जैसे शहरों में मजदूरी करने लगे. From landowners they became laborers. Can you imagine? And the only business was country liquor. जब शादियां भी होती थी तो the exchange gift was of liquor, my dear friends. नेचुरली उसके वजह से क्राइम रेट जो था वो हाई था, एजुकेशन लो था, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वहां भेजते थे पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए, हार्डशिप के लिए. चाइल्ड मोर्टेलिटी भी हाई था. एंड ऑलमोस्ट एवरी फैमिली अदर देन 3 families were below poverty line, my dear friends. लेकिन 1989 में बदलाव शुरू होने लगा. नाउ आई वांट पूरा गांव शामिल है, लेकिन गांव शामिल है तो भी उसके लिए नेतृत्व चाहिए, जो एक बहुत ऐसा आदमी चाहिए, which we will see in अर्थशास्त्र, उसे हम स्वामी कहते हैं. You need a person of very high character because the leadership over there is very difficult. But उस leadership के वजह से जो फिर बदलाव की शुरुआत हुई, it converted it to a GDP which is of a very, very high order for a village in the country. And that has made it the model village, जिसके वजह से अभी पवार साहब आदर्श ग्राम योजना महाराष्ट्र सरकार ने जो शुरुआत की है,
He is leading the entire initiative. और आज हिवरे बाजार में बैठे हुए, जैसे आप अभी देख रहे पोपटराव पवार साहब को, sitting in a conference room over there, he speaks to all the sarpanches across the state today. Tomorrow it will be across the country, my dear friends. Because every village can do this. Every city can do it. In fact, गांव क्या, शहरों की भी जरूरत है कि ऐसे करें. So it became, the land became arable. We'll see how. High grass production, dairy production became very high, milk livestock grew, migration became reverse now. और 112 देशों से लोग आए और आ रहे हैं देखने के लिए, अरे ये हिवरे बाजार में है क्या. नाम भी बहुत प्यारा है, राइट? हिवरे बाजार. It almost looks like a golden village. First defecation free village in the country. और एक इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट. पर कैपिटा इनकम इज ऑन एन एवरेज of 30,000 rupees per person, but there are many other millionaires in the country. Okay, so in the village. So let's see a little bit of पवार साहब बैकग्राउंड. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. जब हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, तब हमने ये देखा कि पवार साहब जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू सिटिंग इन द रूम छात्र थे. पोस्ट ग्रेजुएट बने पूना में, एमकॉम हुए, and he was a cricket player who was representing Maharashtra, and he could have gone to the India level if he so desired. लेकिन जब पवार साहब पूना से हिवरे बाजार गए, फिर से अपने गांव में गए, तो उनको दिखाई दिया that the need for me over here is much more right now than the cricket team of India. And he chose to go back to Hivre Bazar because of the very deplorable conditions then in the 1980s. He won over there unopposed. Why? Because the women and the youth entirely supported Pawar Saab for the change he stood for. At that point in time, he must have been just 37, 38 years old, maybe even younger. But he chose to be in that village and stay in that village ever since. तब से पवार साहब को कितने सारे ऑफर्स आए हैं अलग अलग पार्टीज के. Naturally, they want him into politics. But Pawar Saab has chosen to stay over there. What are some of the sutras for management, my dear friends? ये आपने शेषाद्री साहब के लेक्चर में सुना रहेगा. I'm just showing you what were some of the hard measures which had to be brought in. The kind of leadership that Pawar Saab used, I would like to call it as tough love. दिल में प्यार है, लेकिन बाहर से we have to be very kadak, right? Because you can't change anything unless you are tough with people. कितनी सारी बंदियां हैं देखो यहाँ पर. चराई बंदी, कुलाड़ बंदी, नशा बंदी, नस बंदी, लोटा बंदी. Now 5 ऐसे बंदियां लानी पड़ी to bring pabandi amongst people. Because unless there's a discipline in the village, my dear friends, nothing can happen. Unless there's discipline among citizens anywhere, there cannot be any prosperity. तो उसके साथ साथ दो चीजें की, which is groundwater management and most importantly श्रमदान. श्रमदान जहां हर एक को मौका मिलता है कि इसके फ्यूचर में, the future of the village where they stay, कैसे हम भी उसमें शामिल हो, हम भी उसमें सहभागी हो, हम भी उसमें मेहनत करके दिखाए कि हम क्या कर सकते हैं आगे. So when we went over there 1 year back, we used Kautilya Arthashastra as the base. तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि in all our business schools in India, we teach so much of Michael Porter and perhaps I've been now so full of, I would say, Western authors that now I just don't want to even
talk about it so much as now the Arthashastra touches me, because Arthashastra covers three main things. See, it's right on the screen right now. First of all, Arthashastra talks about purpose, alignment for the purpose of good of all. अभी जब हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, सबसे पहली बात जो हम पढ़ते हैं, जो मैंने पढ़ा when I started management, I learned that management is about profitability of organizations. Now I realize how wrong it was, because we have to move it from profitability of organizations to prosperity of the entire ecosystem. एक तो prosperity क्या है, ये हम देखते हैं in 2 minutes. Then in Arthashastra, the what is also covered. मतलब prosperity किस किस के लिए? So it has to be inclusive, my dear friends. And most importantly, उसको कैसे लाना है? So you want prosperity, you want, everybody to do well. How to do it? All these tools and techniques are there in the Arthashastra, my dear friends. मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर देने वाला हूं, because Arthashastra is a big topic. I just want to tell you, जब हमने इसका केस स्टडी किया, we went to, there are 15 books, 15 वॉल्यूम्स है अर्थशास्त्र में. तो हमने पहले वॉल्यूम से, बुक 1, it's called the book of training. Every book is called Adhikaran. So the first book is called Vinayadhikarakam. अभी उसमें we studied, these 6 things. I'm not going through them right now, but you can quickly look at it. Then we went to book 2, book 6 and book 15. तो हम जब हिवरे बाजार पहुंचे, उसके पहले ही हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था कि हम किस फ्रेमवर्क से अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल्स लेकर, अर्थशास्त्र के तत्व लेकर हम इसको पढ़ेंगे, ताकि हम अच्छी तरह समझ सके कि यहाँ क्या क्या काम हो रहा है. So when you go prepared and then you do the field work, we stayed in Hivre Bazaar for 2.5 days, nearly 3 days, and it was amazing. It was a transformative experience for life, my dear friends. तो आप, it will be even better कि आप सिर्फ इसे सुने नहीं, आप खुद हिवरे बाजार जा सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं. मैं और 10 मिनट लूंगा सिर्फ बताने के लिए what are the key things that you would like to perhaps discuss with Pawar Saab after his session is also completed. अभी मंत्र क्या है, तंत्र क्या है और यंत्र क्या है? मंत्र में आ गए all those principles by virtue of which you get your vision, you get your mission, you find your strategies. ये है मंत्र. मंत्र मतलब क्या? मंत्र त्रायते, मन से जिसका संबंध है, that is mantra. So I'll tell you what this PSSR principle is. Be with me for a while. प्रकृति संपत I will share a little bit about. और कुछ मूल सूत्र है जो 2 या 3 सूत्र मैं आपको आज पेश करूंगा. फिर तंत्र. तंत्र मतलब क्या? अभी you have the mantra, like a company has a vision, company has a strategy, लेकिन उसका आप उपयोग कैसे करेंगे? थ्रू प्रैक्टिसेस. तो अर्थशास्त्र में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको सिर्फ सप्तांग के बारे में बताऊंगा. ओके, इन जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स आई विल इंट्रोड्यूस यू माय डियर फ्रेंड्स. और तीसरी चीज है यंत्र. हाउ विल यू मेजर? सो टू हैव यंत्र, डैशबोर्ड्स, अगेन चाणक्य हैज मेनी. अर्थशास्त्र में इतने सारे डैशबोर्ड्स है, इतने सारे मेजरमेंट सिस्टम्स है, हमने सिर्फ उसमें से 5-6 का इस्तेमाल किया. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर any of these today except the last one. One example of reflection questions. My purpose today is to merely share with you, give you a flavor of Arthashastra and its connection with leadership. Today we use Hivre Bazaar as a case. Okay, so let me go to the basics. अभी मैं आपके सामने
टोटली देयर आर 10 सूत्रास. मैं आपको सिर्फ पहले 3 सूत्र बताऊंगा जिससे आपको समझ में आए कि हिवरे बाजार का केस क्रिएट करने के लिए हमने किन चीजों का मूल लेकर we have studied this entire case. We have studied the prosperity in the village, and you will see that the foundation of prosperity lies in these very sutras. मतलब चाणक्य या कौटिल्य ने जब ये सूत्र बनाए, उन्होंने हिवरे बाजार जैसे गांवों को ही के बारे में सोचकर बनाया रहेगा. Okay, let us just see what they are. First one, I mentioned that there is a model called सप्तांग. सप्तांग मतलब 7 अंग, 7 parts of the body, 7 limbs of the state, 7 limbs of the village. वो क्या है? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्राणि, the plural of mitra, प्रकृतयः. Swami is the name for the leader, my dear friends. Why is it the name for the leader? Generally we hear Raja, na? So Raja के बजाय Swami क्यों आया? ये शब्द क्यों है? Because Swami is the one who has control of the senses, the one who has conquered himself or herself. Only such a person can rule. अगर उसको खुद पर कंट्रोल नहीं है तो वो गांव को या राज्य को या राष्ट्र को उस पर कैसे राज करेगा? Hence Swami. And we found the one who actually stood for this in Popat Rauji, as you will see very shortly. Amatya is the deputy or are the deputies. Janpad matlab praja. Durga matlab infrastructure. कोश मतलब कैश, ट्रेजरी. दंड का मतलब है टीम, जो भी है, सब लोग जो गांव में है, राष्ट्र में है, काम करने के लिए, द पीपल हु आर एम्प्लॉयड बाय द लीडर. एंड मित्र, मित्र इज नॉट फ्रेंड, मित्र आर allies, मित्र आर स्टेक होल्डर्स who work for the same purpose. ये जो 7 अंग है, लीडर, डेप्यूटी, सिटीजन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेजरी, टीम एंड allies, ये 7 अंग को मिलकर सप्तांग बन जाता है. तो स्वामी हो गए पोपट राव जी. अभी उनके बहुत सारे अमात्य हैं जिसके बारे में we'll mention just briefly in a few moments from now. जनपद, villagers, about 2,500 plus people over there. It may grow much more in the future, even though there is a population control, because many will want to become part of Hivre Bazaar. बहुत सारे लोग चाहेंगे कि हम यहाँ जाकर रहें और सीखें and become part of the prakriti that is over there, become part of the sampada that is available over there. तो इसको कैसे लाए? How is prosperity brought in? I'm going to introduce a second sutra for you. अभी दोस्तों, those of you who are, so used to the models that we have learned from the West, now look at what Chanakya says are most important for any leader to study. There are 4 things he says every leader must study. पहली बात है अन्विक्षिकी. Anvikshiki is the science of holistic thinking. How to think. Number 1, Trayi. Trayi is 3 Ved. And here Veda is referring to the knowledge of righteous conduct. कैसे जीना है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे लीडर बनना है, all that comes under Trayi. Then comes Varta. Varta is how to create livelihood for everyone in the nation, in the village, in society, and so on.
So Varta can also be called as behavioral economics, if you will, because it's all about studying behavior of people. और उसके बाद आया दंड नीति. Danda Niti is the science of governance. Many people have wrongly translated it as the science of punishments. How wrong they are, because it is the science of governance. You can look at the third box directly. Third box, जो green वाला है. Now, if we look at Hivre Bazaar as an organization, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? Leadership mindset. वो किससे आएगा? अन्वीक्षिकी. अगर वो माइंडसेट है, then we have the right vision and right values. वो किससे आएगा? त्रयी, 3 वेदों से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद. अर्थवेद बाद में आया था, सॉरी, अथर्ववेद बाद में आया था, so it is not considered as one of the त्रयी. Then you need a business model for financial viability. That is called Varta. And then in organizations, we have people management, which comes from Dandaniti. ये चारों चीजें कौटिल्य अर्थशास्त्र में है दोस्तों, in great detail. Okay, so you can study it. Now, what does the leader need? किस तरीके का स्वामी चाहिए या स्वामिनी चाहिए, if it is female? तो यहां पर चाणक्य ने बताया है what kind of governance is required. विनय मूलो दंडः प्राणभृताम योगक्षेमावह. Governance when rooted in self-discipline of the leader. I repeat, governance when rooted in self-discipline of the leader. अगर लीडर में डिसिप्लिन नहीं है, आगे कुछ नहीं हो सकता है. It's lost. That's why you see lots of politicians today across the world, they are not able to manage their own nations because their own discipline is in suspect, right? Then they can bring, if there is self-discipline, then alone they can bring yoga and shema. Yoga is security and shema is prosperity. But for that, you need the right purpose. This is called the PSSR principle. I repeat, this is called the PSSR principle. Praja sukhe sukham ragyah, prajanam cha hite hitam. I will read only the first part of the sutra. Praja sukhe sukham ragyah, प्रजा नाम च हिते हितम. मतलब क्या? प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है. आई रिपीट, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है. In other words, only in the sustained happiness of the people lies the sustained happiness of its leader. Otherwise, there's nothing. So you can see organizations where the leader has not focused on the future, not focused on the happiness of the customers or their employees, generally have seen a decline. You can study any organization, my dear friends. It follows this rule. तो हिवरे बाजार में अगर संपदा है, अभ्युदय हुआ है, प्रॉस्पेरिटी है, उसका कारण ये है कि इसको पूरी तरीके से पोपट राव जी जानते हैं, पहचानते हैं और जीते हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है. ओके, सो विद दिस आई एम गोइंग अहेड नाउ. दिस डेक इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू यू. चाणक्य ने कहा है, क्या स्वामी या राजा अकेला काम कर सकता है राज्य का? नो. सो व्हाट डज ही से? चक्रम एकम न वर्तते. आई रिपीट, चक्रम एकम न वर्तते. केवल एक ही चक्र अपने आप घूम नहीं सकता है. कोई भी गाड़ी के लिए हमें 2 पहिया मिनिमम वी विल नीड. अगर 2 चक्र नहीं है, 2 व्हील नहीं है, 2 पहियाएं नहीं है, इट कैनॉट मूव. So what does Chanakya want to say?
Chanakya says every leader needs amatya. Every leader needs deputy. So हम जब हिवरे बाजार में पढ़ने गए कि अर्थशास्त्र किस तरीके से काम करता है, we saw that there were multiple amatya who are execution specialists. I just want to give you an overview what all we studied. Okay, I'm not going into details of this. We studied why do villages sarpanch need amatya? Amatya kahan se aayenge? What are the qualities of a good amatya? How to assess these qualities? And क्या उनके लिए ऐसे उपाधि है, फिल्टर है, टेस्ट है, परीक्षा है, using which we can test their character. All of this is there in the Arthashastra and is being followed very nicely at Hivre Bazaar. So you can see one picture over here. This image is of Habib Ji. Habib Ji is so down to earth कि आपको लगेगा भी नहीं कि वो अमात्य है. He will feel like the boy next door. लेकिन काम इतनी अच्छी तरीके से करते हैं और एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से he'll tell you what you need, including presentations, my dear friends. So they explain to the whole world what they do, and the presentations are done both by पवार साहब तो है ही, but even हबीब जी. तो हबीब जी ने अपने को बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि विलेज गवर्नेंस होता कैसे है. Okay, I'm just going to show you one or two slides. See, why do we need amatya? Because village governance, as we saw in Hivre Bazaar, had these 5 things very strongly taken care of, all of which were managed by committees, and committees were led by amatyas. Whether it is the earth, soil, forest, whether it is the water irrigation, whether it is agriculture and dairy farming, whether it is education and children, or whether it is food and sanitation, everything taken care of by committees led by amatya. Credit कोई नहीं लेता है, कोई खुद होकर नहीं बोलता है कि मैं अमात्य हूं. Okay, that is the beauty of it. I'm going to move to the next part, which is जो चीज चाहिए, which is deep study, analysis and decision making. This was done in great detail by in Hivre Bazaar. You can see the impact of watershed management. The biggest change that Pawar Saab brought was because of one resource called water. And that water budgeting and the usage of it in a meaningful way changed the entire future of the village and sustained future. So you can see how the figures have moved from 1990 to 2020. Look at the movement over there, all going upwards and no sign of dipping or even plateauing. Similarly for dairy management. Right? And with that, the per capita income also growing. Everything managed by villagers. So, ये मैं cover नहीं करूंगा. It's all there in your deck. But I will go now straight to what is called as initiatives which brought prosperity. आपको सिर्फ headings बताऊंगा. 8 initiatives किए, all connected to Arthashastra principles. Here you go. So we have a principle in Indian wisdom called Samasta Jan Kalyane Nirantaram. Highest good of maximum number for longest period of time. Look at the initiatives under them. Initiative number 1 was to identify and reduce weaknesses like water scarcity due to inadequate rainfall, to reduce alcoholism, to reduce poverty, to reduce illiteracy. So पहले weaknesses identify किए. उसके बाद initiative 2 was identifying core strengths. There were a lot of strengths because
there was a natural topography which could be modified for watershed management. And in general, there were people who were extremely committed and hardworking. They had forgotten their basic nature. Initiative number 3 was to create an ecosystem for both humans and nature. Initiative number 4 was to create synergy through passionate and focused people. जो लोग हैं, जो जनपद है, उनसे सबसे ज्यादा श्रमदान करके how do we get the maximum output? Initiative number 5, environment friendliness को बढ़ाना है. Initiative number 6, dependencies को कम करना है. इसके लिए dairy farming जो लाया was a second source of income, because even if agriculture dips in one season, dairy farming acts as the backup. Initiative number 7, how do we sustain even in crisis? Everything has been thought of. And initiative number 8, how do we constantly increase livelihood? तो इस पर बहुत कुछ study किया है. You can see when you go through the entire deck. On one side, we have shown what were the circumstances, and on the right hand side, we've shown कि पोपट राव जी ने अपने जो दंड है और अमात्य है उनसे मिलकर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जिसके वजह से बदलाव आया. Okay, so we studied this in great detail, and all of it is available to you, my dear friends. All this is studied by us so that it can be used in the future by everyone. Impact. Okay, my last 3 slides. Look at the impact. Today, my dear friends, 0 below poverty line. Families from earlier only 3 above it. And amongst the highest per capita income villages in the entire country. Education facility, 100% literacy till class 10. And many more going, becoming engineers, doctors, all backgrounds are there now. Minimum use of pesticides and fertilizers. Average income, we've spoken about, 60 out of 235 families are today Lakpatis. Number of families who migrated back, it grew from 90 to 235. A model village which led to Adarsh Gram Yojana. The village today has 294 open wells, all with water. A dedicated patch which is maintained for the ecosystem to grow, to preserve 100 different species of plants. More than 5,000 liters of milk produced every day, my dear friends. And Hivre Bazaar today fulfills maximum matters of village governance led in the 11th schedule of the corporation, constitution. My apologies. So we created one checklist. किसी की भी गांव को अगर इसी तरीके से they want to thrive, what are the questions they need to ask themselves? Okay, I'm not going through this, but I want to show you, we created a dashboard, a checklist, that these are the 9 things I need to identify, study, measure, and continuously keep growing. So all matters of sustainability, my dear friends, taken care of today on the basis of one single resource that they focused on. क्या था वो? पानी. इसके लिए भारत में पानी को अमृत बोलते हैं. Because that one resource led to the prosperity of the village. And I want to tell you that this one thing, I'm not sure whether this was covered earlier by Sheshadri Saab. See what has been avoided. Anything that harms water, avoided. No tapris, no restaurant, no hotels. No builders, no large complexes. Land not sold to outsiders. Migration of outsiders not allowed. And poultry is also avoided, my dear friends. So what do we learn? Summary. अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, धर्मम अर्थम अर्थ च कामम च प्रवर्तयति पाति च. Arthashastra, when it has followed by the leader, it brings
into being and preserves spiritual good, economic well-being and material contentment. प्लस अधर्म और अनर्थ को निकाल देता है और इकोनॉमिक डिजास्टर एंड इवन सोशल एनमिटीज को भी खत्म कर देता है. See how powerful it is. So for all of this you need a leader such as Pawar Sahab, because it says Jitatma Sarvarthayahi Sanyojit. The self-conquered leader is able to conquer the riches of the world. Last but not the least, my dear friends, I want to show you that भारत में हम हर रिसोर्स को एक देवी या देव इसके जो फॉर्म है, इन दैट फॉर्म वी वर्शिप इट. हम सोचते हैं कि भारत में इतने देव और देवियां क्यों है? बिकॉज इफ रिसोर्सेज are given the form of a god and goddess, people value it. So do you know, we studied even one temple over there, and वो temple है चांकाई देवी जी की, and she is the देवी of water. और इसके वजह से पानी के लिए वहां पर इतना महत्व दिया गया है. With that, I want to close this session by saying that I really thank Popat Rauji Pawar and Sheshadri Saab for this opportunity to help us not only study but also present it to you, dear friends. और मैं चाहूंगा कि आप सभी हिवरे बाजार आए, नंबर 1. नंबर 2, ये जो केस मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है उसको अच्छी तरीके से पढ़े. And now over to Popat Rao Saab. Pawar Saab, thank you so much for this opportunity. Hopefully आपने जो हमें एक तरीके का चैलेंज भी दिया था कि आपको ये स्टडी करके यू हैव टू मेक समथिंग ऑफ इट, आज पूरा हो गया. थैंक यू वेरी मच. राजेश जी धन्यवाद. और अभी 60 लोग तो समझ गए, और भी बहुत मौका मिलेगा आपको. बार बार हम क्लास में हाजिर होने का निमंत्रण पत्र देंगे. और अभी पोपट राव जी, ये बच्चे लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. मतलब आपसे सुनना चाहेंगे, तो कोई भी प्रश्न पूछ सकता है और मैं थोड़ा मॉडरेट करूंगा. पहले साक्षी गोपाल सहगल पूछेंगे. नमस्ते सर, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप लोगों की क्लास में आए. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप इलेक्शन लड़े इनिशियली, जब आपका पहला टाइम था, आपने एक्चुअली क्लेम किया हुआ कि मैं शराबबंदी करूंगा, बट जब इम्प्लीमेंट किया ये, तो कितना अपोजिशन हुआ और आपने लोगों को, जो कम्युनिटी थी, उनको कैसे साथ किया? बटन सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही. हाँ बोल. सो पहले मतलब आपका धन्यवाद कि आप हमारी क्लास में आए. मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आपने इलेक्शन लड़ा, कंटेस्ट किया, आपने कई सारे क्लेम किए होंगे कि आप शराबबंदी करवाएंगे, आप जो जानवर वगैरह चरते थे उन पर बंदिशें लगाएंगे. बट ये क्लेम को जब आपने इम्प्लीमेंट किया, तो क्या पोजीशन हुआ था? कम्युनिटी आपके साथ थी, नहीं थी? आपका क्या मतलब आपने क्या फील किया उस वक्त? पहले तो मैं डॉक्टर शेषाद्री सर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक मौका आपके साथ बात करने का दिया. और दूसरी बात यह है, हम तो काम करते रहे गांव में, लेकिन कौटिल्य का ग्रामायण और कौटिल्य का सूत्र, इसमें जिस ढंग से राजेश जी ने प्रेजेंट किया तो मुझे भी बहुत खुशी हुई. काफी अच्छा प्रेजेंटेशन हिवरे बाजार के स्टडी का. मुझे भी खुशी हो गई कि हम लोग तो काम करते हैं गांव में, लेकिन उसका सूत्र विकास का क्या है. हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में ग्रामीण विकास का ढांचा कैसा होना चाहिए, और हमारी जो परंपरा है इस देश की, जो संस्कृति, जो सभ्यता है, कि वो
देश के साथ किस तरह से टाइप है, ये काफी अच्छा प्रेजेंटेशन मुझे देखने को मिला। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा बढ़िया है। और आजादी की अमृत महोत्सव अभी हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। आजादी को 75 साल हो गए और अब की जो इंस्टीट्यूट है वो एक देश की एक टॉप की इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट की। और यहाँ से जो भी बाहर जाएगा तो ये देश, पहला तो नेशन फर्स्ट, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। क्योंकि पिछले 2 महीने में बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट में बात करने का मौका मुझे मिला। पहला 5-6 साल दिसंबर में मसूरी में था, जो लाल बहादुर शास्त्री IAS अकादमी। फर्स्ट लेक्चर मेरा ही था। लेक्चर सेकंड डे को जो टोटल सभी 860 स्टूडेंट्स है उनका एक कॉमन करेंगे, तो 1.5 घंटा दूसरे दिन मैंने बात की। वैसे ही मैं 95 से IAS अकादमी जाता हूँ हर बैच के लिए, ये 96 फाउंडेशन बैच। वही टॉक में इतना ही कहा मैंने कि आपका जो अभी मोहर लग गई है अमृत महोत्सव है, आपका सपना और आपके परिवार का सपना पूरा हुआ। आप IAS बन गए, IRS बन गए, आप IPS बन गए या विदेश सेवा, वन सेवा में अभी जाएंगे। जब और 25 साल गुजर जाएंगे, जब आजादी की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन देश में शुरू होगा, तब ये देश, गांव और समाज आपको पूछेगा पिछले 25 सालों ने आपने देश के लिए क्या दिया, रिसोर्सेज के लिए क्या दिया, गांव के निर्माण के लिए क्या किया, जो माइग्रेशन रिवर्स हो कितना हुआ। और सेकंड एक टॉक किया था मैंने IIT चेन्नई में, तो वहां टॉक में इतना ही कहा था कि IIT चेन्नई से भी ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी IITs है, मुझे जाने का ऑफलाइन या भी ऑनलाइन भी अवसर मिला। मैंने वहां इतना ही कहा कि हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर में किस तरह से यूज कर सकते हैं पानी के लिए। जैसे हमारे दादाजी झरने के पानी से पानी पीते थे, आराम से 100 साल जीते थे। और रीति में वही एग्रीकल्चर खेती करते थे। जब लड़का आ गया उसने कुआं बना दिया, उसमें बुल और वो जो पानी उठाने के लिए लोकल नॉलेज यूज करके वाटर लिफ्टिंग का एक सिस्टम लाया। जब पोता आ गया 3rd जनरेशन में, तो उसने ट्यूबवेल लेके आया और प्लास्टिक लेके आया, तो ग्राउंड वाटर उठाया और प्लास्टिक में डाल दिया। 75 साल में जो ग्रीन कवरेज था वो बिल्कुल भयानक कर दिया। झरने का पानी 500 फीट जमीन के नीचे छोड़ दिया। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर में बादलों का पानी, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, बादलों का पानी सीधा प्लास्टिक में स्टोर किया जाएगा, वाटर पॉन्ड, जमीन के नीचे नहीं जाने देंगे। अगर कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो हमारी ग्राउंड वाटर और जो एक्विफर्स है वो ड्राई हो जाएंगे और हमारा फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी दे दो कि वाटर रेशनिंग हो और पानी का समन्यायिक बंटवारा हो, और जो इवापोरेट हो रहा उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। तो आज मैं इतना आपने जो सवाल किया कि गांव की हालात इतनी खराब थी, लोकल लिकर प्रिपरेशन ड्रिंकिंग यही मेन अर्निंग सोर्स था, और आज के दिन ये सब बंद हो गया है। जैसा कि देखो हमारे देश में तो ऐसा 52% एरिया ड्राउट प्रोन है। जैसलमेर से शुरुआत करेंगे तो तमिलनाडु की हम नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तक जाएंगे। आंध्रा हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र, MP, गुजरात, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, राजस्थान। अभी तो जहां एश्योर्ड रेनफॉल है
वह भी पानी की समस्या शुरू हो गई। तो ये है कि गांव में जो समस्या थी वो शुरुआत हो गई 72 के ड्राउट के बाद, 76 के सेकंड ड्राउट, 82 का तीसरा ड्राउट। 10 साल में 3 ड्राउट आ गए। और वैसे ही हमारा जो महाराष्ट्र का भी 50% एरिया ड्राउट प्रोन एरिया है, और वहां हर 5 साल में 2 साल ड्राउट सिचुएशन होती। और महाराष्ट्र की जियोलॉजी भी 81.50 मैसिव बेसाल्ट है, और बेसाल्ट रॉक में वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, 1.5 या 0.6 या 7%। बस बारिश हो गई, रिचार्ज होता है, वाटर लिफ्टिंग शुरू हो गई, बस पानी खराब हो गया और टैंकर और वाटर स्कैरसिटी शुरू हो जाती। ये सिचुएशन थी 72 के पहले। खरीफ की क्रॉप थी, रेन डिपेंड क्रॉपिंग पैटर्न था, और बाद में जैसी टेक्नोलॉजी आगे आगे गई वाटर लिफ्टिंग की, तो प्रोटेक्टिव इरिगेशन सिस्टम आ गए। खरीफ 100% रेन डिपेंड है, रबी क्रॉप 70% रेन और 30% रेन डिपेंड है और 70% प्रोटेक्टिव। और समर सीजन का क्रॉप है 100% प्रोटेक्टिव इरिगेशन से। और हमारी समस्या है वो रबी और समर सीजन में। तो ये हालात हो गई 10 साल में। जिस गांव में घर घर में गाय थी, भैंस थी, सरफेस वाटर ही लोग यूज करते थे, कहीं पानी की समस्या नहीं थी, और मिलेट मेन डाइट था। सूट स्वर्गम, ज्वार हो, बाजरा हो, ऑयल सीड हो, पल्सेस हो, बस लोकल वो यूज करते थे। अब जैसे प्रोटेक्टिव इरिगेशन का कंसेप्ट आ गया तो कैश क्रॉप की ओर चले गए, और गांव में वाटर लेवल डाउन होती गई। दिसंबर एंड को पानी की समस्या शुरू हो गई। अब इसका आधार पानी नहीं तो एग्रीकल्चर नहीं, और एग्रीकल्चर नहीं तो जीना कैसा है, तो लोकल लीकर शुरुआत होगी। और लोकल लीकर के कारण 10 साल में घर घर में नशे आ गए। एक लीकर की, लोकल लीकर की बोतल में एक लड़की की शादी बनती थी। स्कूल के स्टूडेंट्स लोकल लीकर लेके आने के, टीचर और विलेजर्स स्कूल में बैठ के शराब पीने के, जुआ खेलना, ताश खेलना, और इसके कारण क्राइम रेट बढ़ गया। और जो कुछ अच्छे लोग माइग्रेट होके कई शहर चले गए, शुगर केन कटिंग हो, या कई स्लम में रह के मुंबई, पुणे, ठाणे में या अहमदनगर सिटी में। और गिने चुने 5-6 परिवार थे, उनको पूरी साल भर की गारंटी थी कि फूड सिक्योरिटी थी। अब बाकी लोग तो गरीबी में, और ऐसे हालात में 4th तक मेरी पढ़ाई गांव में हो गई। फिर पढ़ाई की सुविधा नहीं, रोड नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा नहीं, बिजली नहीं, ये सब समस्या थी। फिर 89 में पंचायत का इलेक्शन आ गया। उसके पहले 83 में गांव में एक मर्डर केस हुआ था, और 83 से 89 तक ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पनिशमेंट पोस्टिंग विलेज बन गया। तभी हम बचपन में देखा करते थे कि बारिश नहीं होती थी तो गांव के बुजुर्ग लोग वो सब भगवान जी की प्रार्थना करते थे। और जो अभी आदरणीय राजेश जी ने जो चांदकाई माता का, जो पानी वाली माता जो टॉप पहाड़ी पे बैठी, तो वहां जाके प्रे करते थे कि हमारी जो पानी की समस्या दूर करो। और थोड़ी बहुत बारिश, लोगों का बहुत भरोसा था, इसलिए श्रद्धा और अंधश्रद्धा का मेल हमने रखा। तो जब बचपन में कुछ सीखा, देखा, हर सीजन के फ्रूट्स गांव में खाने को मिलते थे 82 तक। लेकिन 3 ड्राउट के बाद हरे भरे पहाड़ बिल्कुल बैरन हो गए। क्रीक फिलिंग, चूल्हे में जलाने का, लोकल लीकर बनाने का ये हालात। आम के पेड़ थे, कट गए, जामुन के पेड़ थे, कट गए, बेर के पेड़ थे, कट गए। यह सब गांव में देखा था, रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे। और जब मैं 89 में सरपंच गांव में आ गया तो मेरे फ्रेंड्स थे। मैं स्टेट स्कूल क्रिकेट टीम से खेला, रणजी ट्रॉफी नेट तक गया था,
पुणे यूनिवर्सिटी हम वेस्ट जोन विनर होके ऑल इंडिया चेन्नई गए, तभी ऑल ओवर इंडिया से 10 यूनिवर्सिटीज लीग और नॉकआउट, वहां भी अच्छा क्रिकेट खेलने को मिला। बहुत बड़े बड़े नाम थे, चेतन शर्मा जो कि अभी इंडिया के सिलेक्शन टीम के चेयरमैन है, मनोज प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, बहुत बड़े बड़े नाम, और अच्छे क्रिकेटर के साथ बैठने का और खेलने का अवसर मुझे मिला। मैं मुंबई में खेला करता था, पुणे में खेला करता था, अच्छे जॉब भी हाथ में आए थे। लेकिन 89 में इलेक्शन आ गया, तभी मेरे सारे फ्रेंड्स बोलने के, अरे आपके गांव लेके जाए यार। लेकिन मुझे डर था, फ्रेंड्स को गांव लेके जाऊंगा और गांव में कोई दंगा कर रहा शराब पी के तो बैड इंप्रेशन हो जाएगा मेरा। ना पानी नहीं, लेकिन शराब थी। गांव तो बिल्कुल खंडर बन गया था, मर्डर स्टोन के मकान, माइग्रेशन के कारण टूटे फूटे मकान, सब इतनी खराब हालत थी, रोड नहीं, पानी नहीं। तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि फ्रेंड्स कहने के आपके गाँव आने का है, लेकिन मैं लेके नहीं जा सकता था। और ये मेरे अंदर नहीं मुझे टोकता था, अरे कुछ करना चाहिए। गांव, बचपन में जो गांव देखा, जो रिसोर्सेज देखे, लिटरेट तो लोग नहीं थे लेकिन कल्चर थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का नेचर था। अगर किसी गरीब परिवार में मृत्यु हो गई तो गांव के सारे चूल्हे बंद होते थे और लोग शेयरिंग करते थे, दुख का बंटवारा होता था। अगर उत्सव आ गए किसी जाति पाति से लेके मजहब से लेके, तो एक साथ मिलके सेलिब्रेशन करते थे। और फिर एजुकेटेड लोग हुए, टेक्नोलॉजी आ गई और गांव की हालात इतनी खराब हो गई, बस ये मुझे बहुत सताता था, अरे करना चाहिए। और 89 में एक प्रयास किया, सब कुछ लोगों को, अच्छे लोगों को लेके, अरे लड़ाई झगड़े खत्म होने चाहिए, गांव के हालात में सुधार आना चाहिए। रोज वीकली पुलिस डिपार्टमेंट गांव में आता है, करेंगे कुछ। तो एक अच्छी यूथ की टीम बन गई, अच्छे लोगों ने सपोर्ट दिया और यूनानिमस पंचायत का इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के बाद पूरा फोर्स हो गया कि मुझे, कि आप सरपंच, प्रेसिडेंट बन जाओ, पंचायत के सरपंच बन जाओ, प्रधान बन जाओ। तब मेरा परिवार मेरे अपोज में था। मेरी माँ तो 8 दिन निकल गई थी, सब अपोज। खुद का फ्यूचर देख, ये गांव के फ्यूचर के झंझट में मत फंसना। डबल माइंड हो गया, और सब खुद का फ्यूचर करना है या गांव का भविष्य निर्माण करना है, बस मैं डबल माइंड होते कुछ सोच में। और 26 जनवरी फ्लैग होस्ट के लिए गांव में आया। मैं नवंबर 89 में सरपंच बन गया, 2 महीने आया नहीं, और फ्लैग होस्ट के लिए आया तो पूरा गांव ग्राम सभा में था। सबको लगा एक अच्छा खिलाड़ी है, लिखा पढ़ा जवान है, सरपंच बन गया, गांव में बदलाव आ जाएगा। सबसे पहला फोर्स था लेडीज का। सभी लेडीज और महिलाओं ने एक सवाल उठाया कि सरपंच, आप तो सरपंच बन गए तो गांव के नशा मुक्त करना चाहिए। आपका जो सवाल था कि शराब से लोग वापस दूध की ओर कैसे शिफ्ट हो गए, सारी महिलाओं ने कहा कि सुबह अगर चूड़िया हाथ में है तो दोपहर को टूट जाती थी। यह हालात था, परेशान थे सब। 1 लीटर की बोतल में लड़की की शादी बनती थी, रोज की मार पिटाई ये सब चलता था। और सभी महिलाओं ने कहा आप करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर मेरी माँ सपोर्ट में आ गई, अभी है तू गांव में काम कर रहा तो सपोर्ट करो। दूसरा यूथ, अरे गांव में अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, हमें बाहर जाना पड़ता है, तो यूथ का सपोर्ट मिल गया और गांव के कुछ बुजुर्ग लोग। लेकिन आपको बताने में दुख भी है और खुशी भी है। अभी 35 साल हो गए गांव में इलेक्शन नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम जनवरी 21 में इलेक्शन हुआ पंचायत का। एक साइड में पद्मश्री का अनाउंसमेंट हो गया दिल्ली में, और 26 जनवरी से स्वागत समारोह चल रहा था, तो लॉकडाउन तक 2 महीने कंटिन्यू चल रहा था। सिर्फ गांव में नहीं, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में, आउट ऑफ महाराष्ट्र लोग बुलाते थे। हर एक सरपंच को सम्मान मिला, सभी सेक्टर के लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिशियंस हो, सभी ने। और लॉकडाउन हुआ बाद में, तो इलेक्शन में मैंने कहा कि भैया किसी को बनना है बनो,
लेकिन एक खुशी का 30 साल का हमारा प्रयास है और देश का पहला सरपंच है जिसे पद्मश्री मिल गया। नॉमिनेशन भी नहीं था, अनाउंसमेंट हो गई। जमीनी स्तर पर काम करने वाले एक सरपंच का वो सम्मान था, वो मेरा अकेले का नहीं था, कम्युनिटी थी। प्रामाणिक भाव से सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट सिस्टम थी, प्रामाणिक भाव से सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल सिस्टम थी, प्रामाणिक भाव से गांव की सक्सेस स्टोरी इंटरनेशनल मीडिया तक को भेजने वाली हमारा फोर्थ पोल था मीडिया, सब थे। और वो सेलिब्रेशन उसके बाद अभी जब होगा, अभी भी कंटिन्यूअस चालू है। तो इस तरह से जब ये आ गया तो मैंने कहा भाई इलेक्शन का थोड़ा, लेकिन को 3 परिवार से 7 लोग थे जिनके कारण 78 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ, 84 में सेकंड टाइम इलेक्शन हुआ और 35 साल के बाद थर्ड टाइम इलेक्शन हो गया। वो 3 परिवार से 7 लोग थे। बहुत दुख हुआ मुझे, मैंने सभी के साथ, सभी को लेके सीएम से सभी के साथ को मिलवाया था, मेरे साथ में रोज गाड़ी में बैठते थे। लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब लोग होते और बाहर से आउटसाइड पॉलिटिशियन ये सपोर्ट था थोड़ा। मुझे 95 में विधानसभा में जाने का मौका मिला था, संसद में जाने का भी मौका मिला था कई बार सभी पार्टी ने। मैंने लेकिन तय किया, शुरू में राजनीति में था लेकिन बाद में तय किया एक अच्छा मॉडल गांव बनाए, देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, भाई इसको सस्टेन रखना, राजनीति से मैं दूर हूं और काम करता रहा। सभी पार्टी के भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर मैं सामने से आ गया तो नाम लेके बुलाते। जब फंक्शन हुआ अशोका हॉल में और गए और प्रधान गए, पीठ के ऊपर हाथ रख के कहा अब क्या क्या करते हो पोपटराव जी, आप एक मॉडल गांव भी बना दिया, ऑफलाइन स्कूल भी शुरू कर दिया और ये कोरोना फ्री गांव भी बना दिया। एक गांव की पंचायत का सरपंच का रिकॉर्ड अगर देश के प्रधानमंत्री जी के पास बायोडेटा होता है, ये हमारे देश की खुशी की बात है। यही सपना देखा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। चलो गांव की ओर, जब गांव बनेगा तो देश बनेगा, गांव बिगड़ेगा तो देश बनेगा। इससे 2.5 लाख पंचायतें देश में, 6.5 लाख गांव में और कौटिल्य के ग्रामायण से जिक्र है हमारा, पंचायत हो ग्राम सभा हो, ये सब जो अभी आदरणीय राजेश जी ने आप सबके सामने रखा, हिवरे बाजार मॉडल जो सूत्रों में कौटिल्य के, तो यह है कि बहुत पुरानी परंपरा है। हम ये परंपरा को हम अगर रिसोर्सेज के साथ जोड़ेंगे तो सारी समस्या का सभी को आराम से सॉल्यूशन मिल सकता है। इससे हमारा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट से किस तरह से, अभी आपने जो पूछा था नशा कैसे बंद हो गई, तो नशा की जो लोकल लीकर बनाने वाले लोग थे इनके पास जमीन थी, फिर उनको कुआं दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, बैंक का सपोर्ट दिया, उनको सीड में मदद की और एग्रीकल्चर इनकम की ओर लेके गए। सेकंड, उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया, उनका अच्छा मकान दे दिया, उनको लगा रहे गांव के कारण ही मिल रहा, वो सपोर्ट में आ गए। और जो ड्रिंक करने वाले 2 टाइप के लोग होते, एक तो खाली पिलाओ किसको भी गालियां देने को बोलो, और दूसरा मतलब के पीने वाले, वो खुद थोड़ी पीते हैं, दूसरों को ज्यादा पिला के गांव में छोड़ देते, लड़ाई झगड़े करवा के लिए। जब 100% बंद हुआ था, नशा मुक्त हुआ था गांव, और 95 में वो स्विंग में काम चल रहा था, तरक्की की थी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का मेंबर भी बन गया था मैं, वो 1000 रुपए में। स्कूल और कॉलेज के लड़के और लड़कियों ने, गर्ल्स यूथ बॉयज सभी ने प्रचार किया था, चुन के आ गए थे। आराम से विधानसभा में जा सकता था मैं 95 में। लेकिन मैंने देखा कि पॉलिटिकल करियर करना है या गांव का भविष्य बनाना है, तो मैंने प्रायोरिटी दे दी गांव के भविष्य। और जब आ गया
तो प्रॉब्लम तो उस वक्त मेरे ऊपर अविश्वास आया, प्रॉब्लम हो गए, वापस गांव में शराब सब शुरू हुआ। तब मैंने साइकोलॉजी का स्टडी किया, ग्रामीण विकास की भी वो साइकोलॉजी होती है। ये अपोज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। सपोर्ट करने वाले दो टाइप के लोग होते हैं, एक सपोर्ट के बाद रिटर्न क्या मिलेगा, और सेकंड सपोर्ट करना है, रिटर्न का कुछ नहीं चाहे, गांव के लिए समाज के लिए करना है। वैसे ही नशा करने वालों का होता, पिलाओ गालियां देने को बोलो, सुबह जब नशा उतर जाता है पैर पड़ता है, सरपंच जी गलती हो गई, रात में ज्यादा पी ली थी, गलती में गालियां दी, उसका कुछ नहीं, उसको पिलाने वाला ढूंढना चाहिए। और जब ये एंगल से गए तो आज गांव में 68 आर्मी मैन से गांव में, लेकिन 99% तो नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत है, स्टेप बाय स्टेप उनको अल्टरनेटिव दिया, पर्याय दे दिया, उनको सपोर्ट किया। आज बैंक कोई डिमांड नहीं करता बीपीएल का कार्ड दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ खुद हमारे गांव में आती है लर्निंग टेस्ट के लिए, सारे पेपर्स कलेक्ट करते, वो पंचायत में जाते, फिर पंचायत प्रपोजल देती आरटीओ ऑफिस, आरटीओ एक डेट देते और खुद हिवरे बाजार में लर्निंग के लिए आते। रेशन कार्ड चाहिए, पैसा नहीं लगता, 30 रुपए में रेशन कार्ड मिलता है, और 1000-2000 रुपए रेट है रेशन कार्ड। कास्ट सर्टिफिकेट घर जाता है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए डगवेल पे या घर में, तो एक एप्लीकेशन दे दिया तो मिल जाता है। इतना परफेक्ट प्लानिंग, क्योंकि डिसिप्लिन अच्छा हुआ, और डिसिप्लिन के कारण 7 सूत्र जो हमारे ग्राम विकास के, उसके कारण लोगों में डिसिप्लिन आ गया। गांव में एक भी स्टैच्यू नहीं है। नशा का सबसे ज्यादा कारण जयंती और पुण्यतिथि, यूथ मनी कलेक्शन करना, डीजे लगाना, डीजे के सामने शराब पी के नाचना। आज यूथ ढूंढते हैं शादी किसकी है, बारात किसकी है, इलेक्शन कौन सा आ गया, बर्थडे किसका है, जयंती पुण्यतिथि किसकी है, बस। तो गांव में स्टैच्यू प्रिविलेज है, हम जीते राष्ट्र पुरुष। अगर छत्रपति शिवाजी राजा आ जाएगा ना तो हमारे गांव में आके बैठना पसंद करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी आ जाएंगे ना, सामाजिक और आर्थिक विषमता कहाँ दूर हुए तो हिवरे बाजार में आ जाएंगे। जितने में हमारे देश के ऋषि मुनि हो, साधु संत हो, जो कोई भी हो, वो आके गांव में रहना पसंद करते। अगर भी आ जाएगा ना तो गांव में आके रहेंगे। पोपटराव जी, अभी मैं आपको बहुत अद्भुत तरीके से आपने विस्तार से बताया पूरा आपका जीवन का यात्रा। हम सबको बहुत प्रस्फुल्लित है कि ऐसा भी लोग अभी इस कलयुग में हमारे देश में है। आप जैसे लोग और भी बढ़े, इस 60 लोग में भी कई पोपटराव होंगे, ये हमारा उम्मीद रखते हुए मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत ही अद्भुत कहानी है और हमें सुनने से एक्चुअली रोमांच खड़ा हो गया, इतना अच्छा था। तो ये अभी बच्चों का अलग एक क्लास है 2:45 बजे, सो आपको सुनने का मन है कि और 1-2 घंटा सुनेंगे, लेकिन अभी इस क्लास जब भी मोहाली में क्रिकेट के मैच होगी ना, तो मोहाली क्रिकेट मैच देखने आएगा तो ऑफलाइन स्कूल में मैं टॉक करूंगा। हाँ जरूर। और मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, अगर स्टूडेंट को जरूरत है तो कभी फोन कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा है, और शायद कई लोग आपके गांव आएंगे, मैं भी आना चाहता हूँ जल्दी ही। राजेश जी के हाथ पकड़ के मैं आऊंगा। और अब आप चंडीगढ़ मोहाली आएंगे तो हमें बताना इस इंस्टीट्यूट में। सर मैं चंडीगढ़ एक स्टडी के लिए आ जाता हूँ, चंडीगढ़ एयरपोर्ट आके खाली कैंसर ट्रेन का टिकट दे दो। आखिरी 1-2 मिनट में बात करके मैं खत्म कर देता हूँ, क्योंकि 75 ईयर में ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गई, लेकिन आज पंजाब में हम 400-500 फीट नीचे जाएंगे तो भी पानी नहीं मिलता। वाटर क्वालिटी खराब हो गई और सॉइल हेल्थ इतनी खराब हो गई तो घर घर में कैंसर के पेशेंट आ गए। बहुत है इधर। हमारे आमदनी के पीछे नशा क्यों आ जाती, ये भी मुझे हमेशा
चौंकाने वाला सवाल होता। कई बार आके गया मैं पंजाब भी, हरियाणा भी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आ जाऊंगा 4 दिन होगा तो हिवरे बाजार आज हैप्पी विलेज है, और हिवरे बाजार में 1 जनवरी 23 के बाद कोई बीमार नहीं होगा और डॉक्टर के पास नहीं। किचन फॉर हेल्थ, ये मैनेजमेंट शुरू है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, नमस्ते राजेश जी, so much. बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगा जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद पवार साहेब, तुम्ही आलात त्याच्यासाठी खूप राजीव thank जी you तुम्हाला. आपला ईमेल आयडी मोबाईल द्या मला. हो, जरूर देईन. Thank you so much, everyone. Happy Holi to all of you. Thanks for finding such a beautiful opportunity हमारी जो केस है वो सुनने के लिए. Thank you, DVR साहब and everyone over here, including Devi Datta and Harjot for helping out. Namaste. Bye bye.